Evening, everyone. Hope you all are doing well. So, today we are here to have a demo class of our English spoken course, and maybe we can wait 1 or 2 minutes more for the participants. They can join. Sometime they face some problems while joining, so we should wait for them. So, kindly be connected with us. Okay, once again, Assalamu alaikum, guys. Hope you all are doing very great. So, as you all know, that today we are here to have a webinar on English spoken course. So, I would like to introduce myself first. My name is Nayab Nazir, and I got my bachelor degree from University of Faisalabad, and now recently I'm doing my master degree in environmental sciences and engineering from Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China. So, now, I would like to start this webinar by the recitation of few verses of Holy Quran. So, I will invite Miss Manal Fatma to recite few verses for us. Thank you. Dear Miss Manal Fatma, kindly turn on your mic and start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Jazakallah, mashallah. Okay, now we are going to properly start our webinar by inviting Miss Mubin Shahzad. I would also like to introduce her first that Miss Mubin Shahzad got her master degree in English from Punjab University Lahore. Recently, she is an English spoken lecturer in University of Lahore. She is connected with Bright Destiny Academy as an English language instructor since 3 years. She has taught 5 batches successfully till now. So she is a certified instructor of spoken English by this academy. So I would like to invite Ms. Mubin Shahzad. Ms. Mubin, please come and elaborate about your course. Thank you. Okay, thank you so much. Well,
Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well by the mercy of Allah Almighty. Well, I'm gonna share my screen. Okay, basically आज हमारा जो वेबिनार है वो स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे है. द मेन थिंग नाउ डेज देयर इज अ हाई स्कोप ऑफ स्पोकन इंग्लिश. तो इसमें हमने एक छोटा सा जो है वो वेबिनार कंडक्ट किया है. सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम वी मूव टुवर्ड्स द वेबिनार. द बेसिक थिंग हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोकन इंग्लिश जो है, जैसे कि इसने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मैं ऑलरेडी इस चीज़ पे बात नहीं करना चाहूँगी अपने इंट्रोडक्शन के बारे में. तो मैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करना चाहूँगी कि स्पोकन इंग्लिश जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है लर्न करने के लिए. वाई नाउ डेज स्पोकन इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, वाई देयर इज अ हाई स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर बेनिफिट्स, आपको कैरियर बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें. आपकी जॉब सिक्योर्ड हो जाएगी. आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, कोई प्लेटफॉर्म माई डॉक्टरी लेवल से लेकर एडवांस लेवल पर आप देख लें, स्कूल देख लें, हॉस्पिटल देख लें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देख लें, बीपीओ इंडस्ट्री देख लें, कॉल सेंटर देख लें, स्पोकन इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पर. तो जो स्पोकन इंग्लिश करता है या जिसको स्पोकन इंग्लिश आती है, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, ऑब्वियसली उसका कैरियर जो है वो सिक्योर्ड होता है, पॉजिटिव वे में जाता है. ऑन द अदर हैंड उनका ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है सोशल सर्कल, क्योंकि व्हेन यू गो फॉर द जॉब आपके लिंक्स बनते हैं, 1 लिंक 2 लिंक्स बनते हैं. तो आपके लिंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है. जिसको अच्छी कम्युनिकेशन आती है, ऑब्वियसली वो एक अच्छा सोशल सर्कल जो है वो टैकल और हैंडल कर पाता है. वो कैसे उसको ग्रूमिंग करना है, कैसे उसको लेकर चलना है, हाउ टू टैकल ऑल द थिंग्स सिनेरियो, तो इजीली उसको टैकल कर पाता है. ऑन द अदर हैंड जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती या जो लैक फील करता है इसमें, या वो इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ कंपनी का शिकार हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो एक उस लेवल पे, सोशल लेवल पे ग्रूम नहीं कर पाता है, वो कहीं ना कहीं लैक करता है इस चीज पे. द थर्ड वन इज रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम. अच्छा, उसको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है. एक नेचुरल सी बात है कि एक जो इल्म वाला है और जो जानने वाला है, ना जानने वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकते. तो एक नेचुरल फिनोमेना है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, द पर्सन हु नो समथिंग वो बहुत डिफरेंट होगा द पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग. तो वो एक हम इसको लिंक नहीं कर सकते कभी. तो उसको एक सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं. ऑन द अदर हैंड वो फ्रीडम, आपको एक से फ्रीडम मिलती है कम्युनिकेशन स्किल से और स्पोकन इंग्लिश से. आप फ्री फील करते हो, डिपेंडेंट नहीं रहते. मेजोरिटी ऑफ द केसेस आप देखिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं, या उनको स्पोकन नहीं अच्छी आती, या उनको पता नहीं होता, एक ट्रैक नहीं पता होता कहाँ से स्टार्ट लेना है, कहाँ पे एंड करना है, वो पजलिंग मोड में रहते हैं कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से वो एक फ्री नहीं फील करते. वो डिपेंड रहते हैं कभी अपने मेंटोर्स में, कभी टीचर्स पे, कभी यूट्यूब लेक्चर्स पे, कभी डिक्शनरी पे. ऑल द टाइम वो हर वक्त एक स्ट्रेसफुल लाइक कह ले मॉड में रहते हैं, जिनकी वजह से वो अपने आप को एक बाउंड क्रिएट कर लेते हैं अपने इर्द गिर्द, अराउंड यू नो योर सेल्फ और देम सेल्फ, एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीडम वो फील नहीं कर पाते हैं अनफॉर्चुनेटली. नेक्स्ट इज हियर द इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो कि मेन पॉइंट है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती हैं. अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं है बात कैसे करनी है सेकंड पर्सन से, तो हम कहीं ना कहीं आप देखें हमारे माइंड में लूप होल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, हेजिटेशन आ जाती है, और कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस जीरो लेवल पे चला जाता है. क्यों? क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं है, हमें पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं आती अनफॉर्चुनेटली. हेयर वन इज सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी नंबरिंग मिस्टेक हो गई, हाँ अनफॉर्चुनेटली. सो इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, हमें नया कुछ जानने को मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी नॉलेज, हमें नॉलेज मिलती है. एक पर्सन है अगर वो टू एट द सेम टाइम 2 स्किल सीख रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो नॉलेज ज्यादा इंप्रूव होगी जो एक स्किल सीख रहा है. सेम थिंग हैपन विद इट कि हम जब डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं तो हमारी नॉलेज ज्यादा इंप्रूव होती है और हमारी
नॉलेज गेन होती है। इसी तरह इंग्लिश में बहुत सारे कंटेंट हैं, जब उनको समझते हैं, हम लिसनिंग पार्ट पे जाते हैं, रीडिंग पार्ट पे जाते हैं, एज अ होल उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाती है एक टाइम पर। फिर इस मेक्स ओवर ट्रिप्स इंजॉयबल। वेल, जब हम, जिसको बहुत ज्यादा शौक है ट्रैवलिंग का, उनको उनके जो ट्रिप्स हैं, जो ट्रैवलिंग टूर्स हैं, वो इंजॉय उनको कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में। जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल टूर्स ले लें, तो वहां पर बहुत से इंग्लिश पीपल होते हैं जिनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश होती है, तो हम उनके कल्चर को जान सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो हमारे जो ट्रिप एंड टूर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इंजॉयबल हो जाते हैं। वेल, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखी जाए देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा समराइज करके कुछ बुलेट्स में है वो पॉइंट आउट किया है। सेकेंड स्लाइड इज बेसिकली द मॉड्यूल्स। अच्छा, मॉड्यूल्स में रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग तीनों रोल प्ले करते हैं। हाउ? देखिए, लास्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड द बीपीओ इंडस्ट्री, जब मैं कॉल सेंटर में मैं गई थी, यहाँ पर शाहीन कॉम्प्लेक्स, दे गेव मी अ पीस ऑफ पेपर। एंड अगर आप स्कूल में जाके देखें, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं, वो आपको पेपर दे देते हैं, वो कहते हैं काइंडली रीड इट। तो चेक योर फ्लुएंसी कि आपको रीड करना आता भी है या नहीं, आपको इंप्रेशन पुट करने आते हैं भी या नहीं। जो एक अच्छा स्पीकर है उसको रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग तीनों मॉड्यूल्स में ग्रिप आती है, एज कम्पेयर टू अदर पीपल। अगर आप देखे जाए तो वो सिर्फ स्पीकिंग पे ही फोकस करते हैं, वो लिसनिंग और रीडिंग को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तीनों मॉड्यूल्स लिंक है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसको मैंने कोटेशन में इसलिए कोट किया है ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आइडियलाइज्ड हो जाए। लाइक हियर इज द रीड बिफोर यू थिंक एंड थिंक बिफोर यू स्पीक। अब देखिए इस कोटेशन का मतलब क्या है। इस कोटेशन का मतलब ये है कि आप सोचने से पहले क्या करें, रीड करें, ठीक है, और स्पीक आउट करने से पहले थिंक करें। क्योंकि आपको उतना ही जरूरत है रीड करने की भी, क्योंकि आपकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होगी कहीं ना कहीं। तो रीडिंग मॉड्यूल इसलिए जरूरी है, जब आप कहीं इंस्टीट्यूट में जाएं, किसी स्कूल में जाएं, वो अगर आपको कोई पेपर देते हैं रीड करने के लिए, तो वहां पर आपको क्लैश ना आए, आपको पता हो हाउ टू पुट द इम्प्रेशन। एक रोबोटिक रीडिंग होती है जो विदाउट इम्प्रेशन पुट होती है अनफॉर्चुनेटली। जैसे कि हम रीड करते ही जा रहे हैं विदाउट टेकिंग अ पोज, विदाउट जस्ट हैविंग द इंटोनेशन, आवाज का उतार चढ़ाव के बगैर, जैसे हम उर्दू बोल रहे हैं इसी तरह हम इंग्लिश नहीं अनफॉर्चुनेटली बोल पाते हैं। तो अ गुड स्पीकर नोज हाउ टू पुट द इम्प्रेशंस, उसको इम्प्रेशन पुट करने आते हैं, वो एक अच्छा बोल पाता है। जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती हैं, स्पोकन में लैग करते हैं वो। हियर इज द लिसनिंग। अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर। देखिए, लिसनिंग और जो स्पीकिंग है वो इंटरलिंक है। हाउ? अगर आपको पता ही नहीं चल रहा मैं आपसे पूछ क्या रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, आपने कहा आई एम फाइन, आपको आंसर आता है। अगर मैं आपको कहूँ व्हाट आर यू अप टू, इसका मतलब हाउ आर यू ही है, लेकिन ये एडवांस लेवल पे थोड़ा आता है, ठीक है। तो अब आपको उसका पता ही नहीं, आपका माइंड ब्लैंक हो गया कि क्या पूछ रही है मिस मुझसे, ये मैडम क्या पूछ रही है। इसका मतलब हाउ आर यू है, आपको आंसर आता है, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी लिसनिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है। आप लिसनिंग में कहीं ना कहीं लैग करते हो, आप उस लेवल की लिसनिंग नहीं करते हो, सिर्फ सिंपल लर्न करते जा रहे हो और सिंपल पे ही हो आप। तो वहां पर क्लैश आ गया। अब आपको पता है आई एम डूइंग ग्रेट या आई एम फाइन आंसर देना है, लेकिन क्योंकि आप लिसनिंग में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, आपको समझ नहीं आई, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आप क्या हो गया, आपका माइंड ब्लैंक हो गया। तो आप इस वजह से लिसनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। क्योंकि ये वेबिनार है, हम डोंट गोइंग टू इनटू द लेवल। जो कोर्स में एनरोल होंगे फर्दर उनको मैं आगे डिटेल्स भी इंशाल्लाह बताऊंगी। ओके, स्पीकिंग इज द मेन मॉड्यूल बेसिकली। विदाउट स्पीकिंग वी कैंट कन्वे अवर आइडियाज टू अदर्स। हम अपनी बात कन्वे कर ही नहीं सकते दूसरे से। लाइक इफ अ पर्सन हिज मदर लैंग्वेज इज इंग्लिश, अगर उसकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश है, एक पर्सन है, तो मैं अपनी बात क्या उसको कन्वे कर सकती हूँ अगर मुझे स्पोकन नहीं आती, स्पोकन इंग्लिश नहीं आती? नेवर, हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं चाह कर भी उससे बात नहीं कर सकती। यही अगर देखा जाए, अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी इंग्लिश में कमांड अच्छी है, ग्रिप अच्छी है, ऑब्वियसली आई कैन स्पीक इजीली, मैं उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकूंगी। तो हम स्पीकिंग एक मेन मॉड्यूल है जिसको हम निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज हर
इंग्लिश अगर देखा जाए तो देर इज अ हाई स्कोप ऑफ मॉडर्न एरा इन द स्पीकिंग. बेसिकली इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. वी नो वेरी वेल क्योंकि वो उनकी मदर टंग है. वी लर्न इट एज अ सेकेंड लैंग्वेज. हम इसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो है वो लर्न करते हैं बिकॉज ये हमारी मदर टंग नहीं है. इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, इसलिए हर इंडस्ट्री में इसका, हर फील्ड में इसका बहुत ज्यादा स्कोप हो गया है, तो हम उसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्न करते हैं. क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज्यादा हो गया है तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई है, आलमी सतह पे जो बोले जाने वाली जुबान. दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल टू लर्न स्पोकन इंग्लिश नाउअडेज इन मॉडर्न एरा. द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिंगुअल, बायलिंगुअल एंड द मल्टीलिंगुअल. कौन कौन से ऐसे लोग हैं, पर्सन है जो मोनोलिंगुअल कहलाते हैं, बायलिंगुअल कहलाते हैं, मल्टीलिंगुअल कहलाते हैं. इनिशियल स्टेज पे बेसिकली सब लोग मोनोलिंगुअल थे. सिर्फ अ पर्सन हु स्पीक वन लैंग्वेज ओनली. जो पर्सन, जो एक पर्सन जिसको एक लैंग्वेज आती है वो मोनोलिंगुअल कहलाता है. स्टार्ट में ऐसा होता था, लोगों को सिर्फ एक अपनी ही जुबान आती थी और कुछ नहीं आता था, सिर्फ अपनी जुबान आती थी, सेकंड थर्ड लैंग्वेज नहीं आती थी. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम लैंग्वेजेस का अबूर जो है वो बढ़ गया, स्कोप बढ़ गया, क्योंकि ट्रेडिंग स्टार्ट हुई. बिजनेस को एनहेंस करने के लिए सबसे ज्यादा जो इशू आया वो लैंग्वेज बैरियर का आया. लाइक देखिए आप, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. तो अगर हमने बिजनेस या ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उनकी लैंग्वेज लर्न करना. तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने दूसरी लैंग्वेज की तरफ मूव ऑन करना शुरू किया. तो अ पर्सन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बायलिंगुअल. फिर बायलिंगुअल का स्कोप आ गया. Now in modern time there is a high scope of multilingual. A person who speaks more than two languages. ऐसा पर्सन जिसको दो से ज्यादा जुबानें आती हैं वो मल्टीलिंगुअल कहलाता है. लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी एंड चाइनीज एज वेल. लाइक नी हाउ मा हैन हाउ आर यू, आई एम फाइन. मुझे इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है और थोड़ी बहुत चाइनीज भी आती है. तो मैं क्या हूँ, मल्टीलिंगुअल हूँ. आजकल मल्टीलिंगुअल का बहुत ज्यादा जो है वो स्कोप है. क्यों? जैसे मल्टीटास्कर का बहुत ज्यादा स्कोप है. वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा स्किल्स, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस आनी चाहिए एक पर्सन को, इस वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है. इट्स नेचुरल. इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दे सकती हूँ, जैसे कि एक इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, या एक इंस्टीट्यूट ले लें आप. वो उसको एक मल्टीटास्कर पर्सन चाहिए. वो एक मल्टीटास्कर को हायर करती है एज कंपेयर टू एक ऐसे पर्सन जो मल्टीटास्कर नहीं है, उसको हायर करती है. तो वो एक डिफरेंट पर्सन को, लाइक अगर 3 लोग हैं, वो उसको आईटी के लिए सेपरेट हायर कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए सेपरेट हायर कर रही है, ठीक है, और डाटा एंट्री बेस के लिए सेपरेट पर्सन को हायर कर रही है. एक इंस्टीट्यूट अगर हायर कर रही है या कंपनी या इंडस्ट्री, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट पे करना पड़ेगा. लाइक एक पर्सन को वो 10K पे करनी है, 10, 20, 30, ठीक है. इस तरह कंपनी को भी लॉस हो रहा है. क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि वो उसको अलग अलग पे करना पड़ रहा है. और जो पर्सन है जिससे वो, जो आपका क्लाइंट है, वो भी खुश नहीं होगा. क्यों नहीं खुश होगा? क्योंकि 10K इज अ नॉट गुड और अ हैंडसम अमाउंट. अगर यही वो मल्टीटास्कर है फॉर एग्जाम्पल, उसको आईटी भी आता है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसको डाटा बेस एंट्री पे काम करना या कंप्यूटर का सिंपल नो हाउ सब कुछ है, तो वो उसको हैंडसम लाइक 25K भी, अगर फॉर एक एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, कि अगर वो 25K भी पे करती है इसको, तो क्या होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग, कंपनी भी उसको लेके चलेगी और वो जो क्लाइंट होगा वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि वो एक मल्टीटास्कर पर्सन है, उसको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगी. सो बोथ साइड क्या है, उनका बेनिफिट है. इसी तरह मल्टीलिंगुअल का रोल है. एक पर्सन जिसको स्पोकन आती है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, जिसको पब्लिक स्पीकिंग भी आती है, जिसको राइटिंग स्किल्स भी आती है, तो उसका डिमांड जो है, उसका स्कोप बढ़ जाता है. सो हियर इज क्लियर. अब तक कोई क्यूरी? अच्छा, आपको कोई क्यूरी गाइस, आप एंड ऑफ द वेबिनार विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ठीक है. ओके, हियर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें निग्लेक्ट नहीं करने चाहिए? अ पर्सन हु हैज अ गुड कमांड इन कम्युनिकेशन स्किल एंड द स्पोकन इंग्लिश, वो इन चीजों को, इन पॉइंट्स को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करता. और ऑन द अदर हैंड जो लोग सिर्फ स्पीकिंग पे एम्फसाइज करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है.
बेसिक्स टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स आपके होना बहुत जरूरी है। Don't go into a deeper level. The more you go into a deeper level, the more you become puzzle. एक्टिव पैसिव डायरेक्टिव ब्रेक का स्पोकन इंग्लिश से कोई रोल नहीं है, बट हम लोग कहीं ना कहीं लर्न कर लेते हैं, खुद को पजल कर लेते हैं। तो जिन्होंने कोर्स एनरोल करना है, जिन्होंने कोर्स में एनरोल होना है, इंशाल्लाह मैं उनको बहुत अच्छी होती है। देयर आर लॉट ऑफ वोकैबुलरीज, बहुत ज्यादा वोकैबुलरी है, बेसिक्स टू एडवांस वोकैबुलरीज है। तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होना, उसको फर्निश करना, उनको पॉलिश करना टाइम टू टाइम, इट इज योर ड्यूटी। या है जो नाउ डेज यहाँ पर बहुत बहुत सारे एक्सेंट है, स्टैंडर्ड एक्सेंट, नॉन स्टैंडर्ड। फिर आप देखें स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं एक्सेंट को लेकर कि कौन सा एक्सेंट जो है वो रूल है और कौन सा एक्सेंट रूल नहीं है, कौन सा एक्सेंट चाहिए। और जो अच्छा स्पीकर होता है वो अपने एक्सेंट को हमेशा फर्निश करता रहता है, पॉलिश करता रहता है टाइम टू तो एडजस्टमेंट के बारे में भी एम्फसाइज करूंगी। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर है दिस फोर्थ पॉइंट। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट में आंसर देना है। पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनको स्पोकन में उतनी प्रैक्टिस नहीं होती, ग्रिप नहीं होती, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को मर्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो मीनिंग है वो कन्वे तो हो जाता है बट उसका जो आप से प्रॉब्लम या क्लैशेस आते हैं। ओके, सिंपल टू एडवांस, फिफ्थ नंबर। Eleanor Hogger said that one should learn the basics English, then also move towards the advanced as well. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ पीपल पर्सन ऐसे होते हैं जो सिंपल पे ही रहते हैं, एडवांस की तरफ मूव ही नहीं कर पाते हैं। जब हम अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं ना, तो कभी भी माई नेम इज यूज नहीं करते। माई नेम इज लाइक माई नेम इज मुबीन शहजाद, इट इज क्वाइट सिंपल क्लॉज। ये छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, ये स्कूल में बहुत ज्यादा बोले जाने वाला एक कॉमन एक समझ ले क्लोज है, माई नेम इज मुबीन शहजाद। जब व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और यही छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, इतनी सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, वहां पर क्लैश आ जाता है। और जो इंटरव्यू टेकर है वो ऑब्जर्व करता है एवरी मिनट आपकी कम्युनिकेशन स्किल को, कि आप क्या बोल रहे हैं, आप सिंपल यूज कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे यूज कर रहे हैं। तो इसकी जगह इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई नेम, यू यूज दिस इज मुबीन शहजाद, और आई एम मुबीन शहजाद, माई सेल्फ इज मुबीन शहजाद। आप इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं रेदर देन कि आप माई नेम यूज करें। इसी तरह हाउ आर यू, आई एम फाइन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन क्लॉजेस। हाउ आर यू डूइंग, I am doing great. There is a grace of Allah Almighty. I am fit as a fiddle. बहुत सारे clauses हैं जो हम advanced level पे use कर सकते हैं किसी ending, like जब आप किसी से अपना introduction देते हैं या आप किसी से हाल पूछते हैं, when you go for the interview level पे जाते हैं, तो ये चीज बहुत observe की जाती है। ठीक है, तो ये simple to advanced की तरफ move करना बहुत जरूरी है। It is essential. Okay, here is the body language. अच्छा, बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रोल है स्पोकन इंग्लिश में। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बॉडी लैंग्वेज टाइम ऑल द टाइम स्पीकिंग पे एम्फसाइज कर रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज में आगे एक स्लाइड है, मैं आपको शेयर करूंगी। आईज का रोल, हमारी स्ट्रॉन्ग आई कनेक्शन, हमारे फेस फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे हैंड मूवमेंट, हमारे जेस्टर्स बहुत रोल प्ले करते हैं, स्पेशली फॉर द इंटरव्यू लेवल पे। तो जिनको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जिनको स्पोकन आती है या जिन्होंने अच्छी अपना एक प्रैक्टिस की हुई है, तो वो बॉडी लैंग्वेज पे भी उतना ही एम्फसाइज करते हैं जितनी स्पीकिंग स्किल पे करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैमले ऐप से या फिर यूरोपियन कंट्री से किसी अदर कंट्री से स्पोकन इंग्लिश करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, फंड कोशिश तो का होगा। क्यों? क्योंकि जो स्कॉलर्स है ना, इंग्लिश स्कॉलर्स, वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल हमारी बहुत बाद में आती है, लेटर ऑन। हमारे सबसे पहले अगर एम्फोसाइज किया जाए, अगर पॉन्डर ओवर किया जाए तो बॉडी लैंग्वेज है। हाउ यू ड्रेस अप, आप ड्रेसिंग आपकी कैसे होनी चाहिए व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, आपकी स्लाइटली से स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे, आपका आई कनेक्शन अच्छा है भी या नहीं, ठीक है। तो बोलते हम बाद में है, जब हम एंटर होते हैं ऑफिस में तो हमारे एक वॉकिंग स्टाइल, हमारे चलने का स्टाइल, सीट तक आने का स्टाइल, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज कहलाता है। यहाँ पर क्लैश बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, स्पीकिंग बहुत अच्छी है बट हायर नहीं कर रहे। मिस व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? बॉडी लैंग्वेज, उनको पता ही नहीं है ड्रेसअप कैसे होना है, ऑफिशियल लेवल के ड्रेसिंग कैसी है, ठीक है। तो बहुत कैजुअल भी नहीं होनी चाहिए, बहुत अपडेटेड भी नहीं होनी चाहिए। आई विल टीच यू एवरीथिंग अबाउट दैट। तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रोल है स्पोकन इंग्लिश में। ओके, कंसोनेंट साउंड्स, कंसोनेंट साउंड जिनको हम फोनिक्स भी कहते हैं, जो अपना एक्सेंट इंप्रूव करना चाहता है उनको कंसोनेंट साउंड लाजमी सीखने चाहिए। कंसोनेंट साउंड एंड द एक्सेंट आर इंटरलिंक्ड। कंसोनेंट साउंड्स जो है वो हमारे एक्सेंट को इम्प्रूव करती है, फर्निश करते हैं, तो बहुत इजी होते हैं। सिर्फ कौन से साउंड्स नेसल से निकलते हैं, कौन से साउंड थ्रोट से निकलते हैं, इसी तरह साउंड्स पे वर्क ऑन करना सिखाया जाता है बेसिकली स्पोकन इंग्लिश में। Here is the boost confidence and the remove hesitation. A person who knows about the spoken English, who has the good command और communication skill, वो हमेशा confident होगा। जिसको स्पोकन इंग्लिश आती होगी, जिसको पब्लिक स्पीकिंग आती होगी, जिसको कम्युनिकेशन स्किल जिसकी अच्छी होगी, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा। ऑन द अदर हैंड जो इसमें लैक कर रहा है वो पैसिमिस्ट हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा, हेल्पलेस फील करेगा। फिर हेजिटेशन, अच्छा आपकी हेजिटेशन रिमूव के बहुत सारे टिप एंड ट्रिक्स हैं। आई विल टेल यू अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन द कोर्स। तो अभी तो ये क्योंकि एक वेबिनार है, इसको मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा टच दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें इनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आई विल टेल यू अबाउट द टिप एंड ट्रिक्स एज वेल। प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो बस ब्लैंक माइंड लेकर चले जाते हैं। फ्रेशर्स को पता नहीं होता कि हमने कहाँ से कैसे स्टार्ट लेना है। और जो जॉब होल्डर होते भी हैं वो क्या करते हैं, इन अ हरी मूड, अगर आपने स्विच करना है किसी एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ, या कोई आप देख लें प्रोफेशन की तरफ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं तो वहां पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग कोर्स में एनरोल होंगे इंशाल्लाह, आई विल टीच यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द इंटरव्यू क्वेश्चन। आई टोल्ड यू बिफोर कि इंटरव्यू क्वेश्चन में हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रोल है। फिर इसी तरह जब हम इंट्रोडक्शन वर्ड्स यूज कर देते हैं जिसकी वजह से हम डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते अपने आप को। स्पीकिंग उसको भी आती है, स्पीकिंग मुझे भी आती है, लेकिन हमने भी हैव टू डिस्क्राइब, हमें अपना आप एक डिफरेंट दिखाना है। वो डिफरेंट दिखाने के लिए कौन से क्वेश्चंस हैं और इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम टीचिंग में, बीपीओ इंडस्ट्री में, ग्राफिक डिजाइन में कॉमन क्वेश्चन वो पूछे ही जाते हैं, हमें उनके आंसर नहीं आ रहे होते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, हेजिटेशन होती है। तो I'll teach you all those things about the extra tip and tricks. Okay, इधर I have just shared the some trick here. अब देखिए हम, अब सब क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चंस हैं, आपने खुद से सबसे पहले पूछना है। आपको अपने सबसे पहले एक एम क्लियर होना चाहिए अपना कि व्हाई, व्हाट इज अवर मेन पर्पस स्पीकिंग इन इंग्लिश। हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है। अच्छा, डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। somebody want to go यूरोप, कोई एजुकेशन सिस्टम पे हाई यूनिवर्सिटी पे पढ़ना चाहता है, कोई अच्छी जॉब अचीव करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वट एवर इट इज। बट पीछे अगर इसके पीछे इसकी बैकवर्ड पे अगर हम एक एम देखें, वो क्या है? टू कन्वे ओवर आइडियाज, मैसेजेस, फीलिंग्स टू अदर्स। मीन्स कि मैंने अपनी बात दूसरे तक समझानी इंग्लिश में। आई हैव टू कन्वे माई थॉट टू अदर इन इंग्लिश, दैट्स इट। मेरी जो अगर पर्पस देखा जाए
हम सबका इसके बैक पे, तो यही है हम अपनी बात को दूसरे तक समझा सके, दूसरे को पहुंचा सके इंग्लिश में। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं अगर देखा जाए तो हमारा एम जब तक क्लियर ही नहीं होगा हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले एम क्लियर करें। द थिंग इज दैट वी हैव टू जस्ट कम्युनिकेट इन इंग्लिश टू कन्वे आवर आइडियाज टू अदर्स, नथिंग एल्स। इट्स अपनी बात दूसरे को समझाना एक रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले टेक इट इजी, इजी रहना है आपने, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे मिस्टेक्स भी होती हैं, आप मम्बल भी करते हो, आप पॉजेस भी लेते हो, हेजिटेशन भी आती है, इवन दो कि कुछ क्लॉजेस भी मिक्स हो जाती हैं, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ सब कुछ हो जाता है, और एक ट्रू नॉलेज के साथ, एक ट्रू पाथ के साथ। ऐसा नहीं है कि आप एट द सेम टाइम वोकैबुलरी भी पढ़ रहे, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, ऑन द अदर हैंड डिफरेंट बुक्स कलेक्ट कर ली है। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट बुक्स उन्होंने ली है, मिस मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़, इतना इतना ये करूँ, लेकिन मेरी स्पीकिंग अभी तक मैं प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाया। क्या, ट्रैक ही नहीं, एम ही क्लियर नहीं है, ट्रू पाथ ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, एंड कहाँ पर करना है। हियर इज हाउ वी कैन स्टार्ट इट। हम स्टार्ट कैसे ले सकते हैं इसके? सबसे पहले हमारा पर्पस क्लियर हो गया कि हमने हमारी जो स्पीकिंग, अगर हमने इंग्लिश सीखनी है उसका मकसद क्या है, दूसरे को अपनी बात समझाना इंग्लिश में। अब हम स्टार्ट कैसे लें? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम टोटली निल पर्सन। एक एग्जाम्पल दे दूं कि मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, निल हूँ, मेरा माइंड ब्लैंक है, मैंने कैसे स्टार्ट लेना है? शॉर्ट वोकैबुलरीज एंड शॉर्ट क्लोजेस, छोटी छोटी वोकैबुलरीज और शॉर्ट क्लोजेस से। कुछ लोग क्या करते हैं, वन ऑफ माई स्टूडेंट टोल्ड मी दैट आई एम प्रिपेयरिंग द इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को एनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ मिस, मैंने एक्सेंट से स्टार्ट ले लिया, इट इज गुड फॉर मी। यहाँ पर देखिए अब कितना क्लैश आया। उसने क्या किया, बेसिक से डायरेक्ट एडवांस की तरफ जंप कर लिया, एक्सेंट की तरफ। अब एक्सेंट जो है वो लास्ट पे आता है, और एक्सेंट इतने टाइप्स हैं उसके, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, आई टोल्ड यू बिफोर। तो वहां पर अब वो कौन सा एक्सेंट लर्न करेगा, उसको ये भी नहीं पता, तो उसके लिए तो मुश्किल होगी, इट्स नेचुरल। अगर पर्सन डायरेक्ट एडवांस में जंप कर रहा है तो उसके लिए इट्स नेचुरल कि वो प्रॉब्लम और हर्डल्स फेस करेगा। तो सबसे पहले शॉर्ट क्लॉजेस और वोकैबुलरी को एम्फसाइज करना है आपने, डे टू डे डेली लाइफ में मैक्सिमम शॉर्ट क्लॉजेस और वोकैबुलरी वर्ड्स का यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑफ द फैन, इस तरह। इट इज रेनिंग आउटसाइड, द वेदर इज टू मच कोल्ड, इस तरह। ये वेदर बहुत अच्छा है, पंखा बंद कर दो, पंखा चला दो, इस तरह वोकैबुलरी, छोटे छोटे वोकैबुलरी वर्ड्स लर्न करने हैं। अच्छा, और अपार्ट फ्रॉम दैट वोकैबुलरी जो वर्ड्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स। इसका एक प्रॉपर लेक्चर इंशाल्लाह डिलीवर करूंगी मैं कोर्स में, रिगार्डिंग दैट आपको मैं एक बुक भी रिकमेंड करूंगी जिसमें हर प्रोफेशन से रेलिवेंट आपको वोकैबुलरी वर्ड्स मिल जाएंगे। देखिए, वोकैबुलरी वर्ड का स्टार्ट और एंड लेना, बहुत एक प्रॉपर स्टेप लेना बहुत जरूरी है। लाइक अगर मैं एक डोमेस्टिक वूमेन हूँ तो मुझे डोमेस्टिक वोकैबुलरी से रेलिवेंट वोकैबुलरी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी वोकैबुलरी लर्न करूँ, यहाँ पर भी क्लैश आता है स्टूडेंट्स को। टीचर है तो क्लासरूम से रेलिवेंट वोकैबुलरी सबसे पहले करनी है, देन मूव टुवर्ड्स द अदर वोकैबुलरी। सो आई विल टीच यू ऑल द थिंग्स further. So the third and the last one bullet is that, do I want to speak perfect English? क्या मुझे बाउंड किया जाता है, कंपेल किया जाता है एक पर्सन को जो लर्निंग स्टेज पे है कि वो परफेक्ट ही बोले वरना ना बोले? जैसे कि पेपर्स में होता है कि आप अच्छी इंग्लिश में लिख कर आओगे, आपकी वोकैबुलरी हाई फाई होगी तो ही आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगा, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन, तो ही आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और आप पास हो जाओगे, टॉपर्स में काउंट किए जाओगे, अदरवाइज आपकी सप्ली आ जाएगी या फेल हो जाओगे। क्या स्पोकन में भी ऐसा ही है? यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। नो, ऐसा नहीं है। जब आप लर्निंग स्टेज पे हैं तो आपसे मिस्टेक्स भी होंगी, आप बार बार डिसअपॉइंटमेंट भी फेस करोगे, आप पॉजेस भी लोगे, आप कर सकते, क्योंकि हम अपने आप को कहीं ना कहीं लेम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। मैं कर लूंगी, अभी तो शायद टाइम है मेरे पास, या फिर अभी मैं कर नहीं पाऊंगी,
हम अपने आप को बार बार नेगेटिव मैसेजेस दे रहे होते हैं। अगर आप अब नहीं कर सकते तो कभी भी नहीं कर सकेंगे, बिलीव मी, बिकॉज इफ यू हैव अ चांस राइट नाउ टू डू समथिंग देन यू हैव टू डू राइट नाउ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड इज दी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमें किस चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए। आप देखें, जो एक प्रोफेशनल, जो एक होल्डर है, उसके फेस से हमेशा स्माइल होगी स्लाइटली सी। ऑन द अदर हैंड, जिसको बॉडी लैंग्वेज का इतना आइडिया नहीं है, जो बीइंग अ फ्रेशर अगर इंटरव्यू के लिए जाता है या जॉब के लिए जाता है, उसको आइडिया नहीं है कि अब स्माइल जो है वो एसेंशियल है, स्लाइटली स्माइल, हल्की सी स्माइल। ठीक है, उसका पोस्टर अच्छा होगा, बैठने का, बैठने के प्रॉपर पोस्टर होते हैं, लाइक आपने किस तरह बैठना है, बेंड डाउन करके नहीं बैठना। इसमें फिर हाउ टू ड्रेस, कैसी ड्रेसिंग स्टाइल जरूरी है ऑफिशियल लेवल पे। फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशन आप नोटिफाई करेंगे कि उनकी आई कनेक्शन उनका बहुत अच्छा होता है, उनके हैंड मूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं, खड़े होने का स्टाइल, हाउ टू सिट, स्टैंड, ऑल दोस थिंग्स इंक्लूड इन बॉडी लैंग्वेज। हमारे हैंड मूवमेंट्स बहुत रोल प्ले करते हैं एज कम्पेयर टू जो नहीं जानते बॉडी लैंग्वेज को। उनको इन चीजों पे काम करना या इनको इम्प्रूव करना कभी नहीं आता। बॉडी लैंग्वेज पे काम करना और इनको इम्प्रूव करना एटलीस्ट 1 मंथ लग जाता है। इस पे आप समझे इसको कैसे एक एक चीज को हमको इम्प्रूव करना पड़ता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है हम जाकर कहेंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चन में हम जाके कहेंगे नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये वाली, हम अपने हैंड को मूव नहीं करेंगे या मूव करेंगे, ऐसा नहीं होता। जिस तरह हमें शॉर्ट क्लोजेस और वोकैबुलरी की हेल्प लेके थ्रू आउट दी मंथ, थ्रू आउट दी होल मंथ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है इंग्लिश स्पीकिंग की, लिसनिंग की, रीडिंग की, इसी तरह हमें बॉडी लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है डे टू डे लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में, ताकि हम क्या हो जाए, हैबिचुअल हो जाए उस चीज की। ओके, इज दी रोल ऑफ, जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, हम डेली बेसिस पे उसको यूज ही नहीं कर पाते हैं, या समझ कि हम भूल जाते हैं, हम उसको क्रैम करते हैं, रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे माइंड से कहीं ना कहीं वो स्किप हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। रोल ऑफ निमोनिक, ये भी एक ट्रिक है, एडवांस टूल है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने माइंड में इन्फ्यूज कर सकते हैं उन वर्ड्स को जो कि हम डेली बेसिस पे नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज द पैलेट। पैलेट, इसको कहते हैं तालू को, तालू जो हमारा होता है बोलने वाला, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। इसी तरह वर्ड है विटलिगो। विटलिगो एक डिजीज को कहते हैं, फुलबेरी, सॉरी फॉर दैट, मेरी उर्दू बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो फुलबेरी एक वाइट वाइट सी डिजीज होती है, उसको एक स्टेन्स टाइप, व्हाइट एंड ब्लैक स्टेन्स आ जाते हैं फुलबेरी की डिजीज पे। इसी तरह वर्ड है सेंटीपेड, एक कन खजूरे को कहते हैं। अभी हम डेली बेसिस पे नहीं बोलते हैं, लेकिन पढ़ गए, हम निमोनिक के थ्रू वो वर्ड को इन्फ्यूज कर लेंगे अपने माइंड में। जो एक कॉमन पर्सन है उसके माइंड में 25 डेज तक वो वर्ड रहता ही रहता है, अगर वो उसको डेली बेसिस पे यूज ना भी करे तो। अब देखें इसकी एक डेफिनेशन देख लें। निमोनिक इज अ लर्निंग टेक्निक दैट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज, रिटेन बाय मेकिंग रिकॉल इजीली। ठीक है, अब इसके भी टाइप्स हैं फर्दर आगे, टाइप्स जो मैं इंशाल्लाह डिटेल में, आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द डिटेल और डीप थिंग। आपको जो कोर्स में स्टूडेंट्स एनरोल होंगे, आई विल टीच एवरीथिंग, उनको टाइप सारी करवाऊंगी टीच। लास्ट जस्ट स्लाइड इज दैट, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं। वाई डू यू हैव राइट डेस्टिनी एकेडमी को ही क्यों चूज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी बिल्कुल रीजनेबल फी है। आप कोई इंस्टीट्यूट, फिजिकल इंस्टीट्यूट देख लें, 15,000 20,000 कॉमन फीस है। मैं लास्ट टाइम यहाँ पर YMCA जस्ट मेरी कजन गई है, बस पता करवाने गई है, तो वो 20K ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं वहां पर स्पोकन इंग्लिश का। तो यहाँ पर हमारी रीजनेबल बिल्कुल फी है, आप चेक करें। और सबसे पहले तो गुड हमारा ये है कि हमें ऑलरेडी डिस्काउंट मिल गया हुआ है आईफा स्पॉन्सरशिप की वजह से, वरना अगर हमारी रियल फी देखी जाए तो वो 10K है, 10,000 है, लेकिन हमें डिस्काउंट की वजह से आपकी फी जो है वो अफोर्डेबल है, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सपीरियंस स्टाफ है, मैं ऑलरेडी 5 बैचेस टीच करवा चुकी हूँ। मिस नयाब है यहाँ पर, वो भी आर्ट्स की टीचर है, तो एक्सपीरियंस हैं सब लोग। ऑनलाइन क्लासेस हैं,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको फेयर का, आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का। मोस्टली गर्ल्स को मैंने देखा है, जो डोमेस्टिक गर्ल्स होती हैं, डोमेस्टिक वुमेन होती हैं, उनको बाहर जाना अलाउ नहीं होता, तो इस वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस में रिलैक्स फील करती हैं। आप घर में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में, बस आपके पास एक अच्छा नेट होना चाहिए, तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा आप पर। डेली बेसिस पे शॉर्ट शॉर्ट टास्क दूंगी मैं आपको, रीडिंग पैसेज दूंगी, स्पीकिंग जो है वो वीडियोस दूंगी, आपने उसी टास्क को परफॉर्म करना है, उसी पे प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह यू विल बी फ्लुएंट। टिप एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी, बिकॉज स्पोकन इंग्लिश आप देखा जाए ग्रामर और ये ज्यादा कंटेंट से ज्यादा टिप एंड ट्रिक्स पे बेस करती है। जैसे कि मैंने अभी अब रोल ऑफ निमोनिक का ट्रिक बताया आपको, तो इस तरह बहुत सारे ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स आते होंगे, आपको पता चल जाएगा हेजिटेशन कैसे अपनी रिमूव करनी है, कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है। बेस्ट फॉर फीमेल्स, most of the people, most of the females also just feel hesitation regarding the co-education system। co-education system में आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और कुछ जो अगर देखा जाए तो कुछ जो माइडॉक्री लेवल के पेरेंट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते अपने बच्चों या बच्चियों को जाना, स्पेशली गर्ल्स को जाना को एजुकेशन पे भेजना। तो यहाँ पर आपका ऐसा कोई क्लैश नहीं आएगा। हियर इज द सपोर्टिव स्टाफ, आपको प्रॉपर स्टाफ जो है वो सपोर्टिव मिलेगा इंशाल्लाह। और हमारे सर मुकर्रम है यहाँ पर, मिस नयाब है, मैं हूँ, और ग्राफिक डिजाइनिंग की जो है वो टीचर हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्स कंडक्ट करवाए हुए हैं ऑनलाइन, बिल्कुल एक रीजनेबल फी के साथ। तो सारा जो स्टाफ है वो बहुत सपोर्टिव है। आप एनी क्वेश्चन, आपकी क्यूरी हो, आप पूछ सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर टाइम पर अप्रोप्रिएट आंसर देंगे। एंड लास्ट वन इज द डेली होम टास्क एंड प्रैक्टिस। ये सादा काम प्रैक्टिस पे है, और डेली बेसिस पे छोटा थोड़ा थोड़ा आपको होम टास्क दिया जाएगा, बिल्कुल बर्डन नहीं होगा। जो हाउस होल्ड वुमेन है, जो अगर मैरिड हैं, वो भी इजीली कर सकती हैं, तो कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा यहाँ पर। नाउ if you have any query regarding the, sorry for that, my slide has disappeared unfortunately once again। do you have any kind of question regarding the course, जो कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, and any other more question regarding the spoken, you may ask freely। जी सर Okay, करम, so are you there? yeah, Okay, Miss, Bismay, he's, okay, okay। yeah. Thank you so much, Miss Mubin, for the details about your course. So, guys, we also have Chief Executive Officer of BGA, like Bright Destiny Academy founder, and President of Association of Young Physicists and IFA Pakistan, Mr. Mukarram Munir, and he was also an ex-lecturer at University of Gujarat. So, he would also join us to tackle your questions and queries regarding this course. So, Mr. Mukarram Munir, kindly over to you. Thank you. Thank you so much, Ms. Mubin, as well as Ms. Neab, and thank you so much to all participants जिन्होंने इस वेबिनार के लिए इंटरेस्ट शो किया और इस वेबिनार को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुना। तो अभी क्वेश्चन आंसर्स का हमारा सेशन स्टार्ट है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है मिस मुबीन से, आज के वेबिनार के हवाले से, स्पोकन इंग्लिश के हवाले से, तो वो आप पूछ सकते हैं। जी आयशा, आप कुछ शायद पूछना चाह रही हैं? Yes, I wanted to ask. Yes, I wanted to ask that I have just completed my course of on IELTS with Miss Nayab Nazir, and I was hoping to join this speaking course with to make my English fluent and my accent persistent. So I was my question is that in this course will we speak in class in English according to our lives and all the things, and will we get a chance to speak in class, or is this class only about like sharing the steps and rules for speaking and
formalities. जी मिस मुबीन, मैं तो शायद प्रॉपर वे में नहीं उनका क्वेश्चन सुन सका, अगर आप सुन सकी हैं तो। Yes, I got your point. Actually, your voice was a little bit distraction as well. Actually, there is a huge difference between arts and the spoken. Okay, first of all, you have to understand this. In arts, we have to just emphasize four modules, not much in a deeper level. But here in the spoken English, we have to emphasize in the speaking overall. Okay, can you hear me? Yes, I can hear you, but The thing is that first of all, you have to understand there is a huge difference between the arts and the spoken. yes, I get it. Yes. Any more questions? जी ऑल पार्टिसिपेंट्स, एक और रिक्वेस्ट है कि जो लोग वेबिनार के ग्रुप में एडिड हैं वो अपना फुल नेम शेयर कर दें फॉर अटेंडेंस. ई सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ यू. आप अपना फुल नेम इधर भी इनबॉक्स में सेंड कर सकते हैं ताकि फिर वो विल प्रोवाइड ई सर्टिफिकेट्स. एनी मोर क्वेश्चन regarding today's webinar or spoken English course? जी गाइस, आपकी अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क फ्रीली. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तुम काजूम ताज फ्रॉम फैसलाबाद. मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा कि क्या हम एआई को यूज करते हुए अपनी स्पोकन को इम्प्रूव कर सकते हैं, एआई टूल्स को? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स. देखें, यूट्यूब देखें, आप एआई देखें, चैट जीपी देखें, आप सब आपको अपनी अपनी इंस्ट्रक्शन देगा. क्लैश ये आता है, यहीं पे क्लैश आता है जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ना, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देता है. तो रेदर देन कि आप किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म को यूज करें, आप अपने माइंड को यूज करें. ठीक है, यूज योर माइंड, मेक sentences in your mind, think in English. यहाँ पर Okay. क्लैश सबसे ज्यादा आता है. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर देते हैं. क्यों? वो रीड करना चाहते हैं अपनी न्यूज वो रीडिंग को. तो न्यूज़पेपर एक बहुत एडवांस लेवल है. आपने एक डायरेक्ट जंप नहीं करना. अब एआई टूल एक एडवांस लेवल है. यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू यूज इट. आपको इसको यूज आना चाहिए, देन मूव टुवर्ड द एडवांस लेवल. ओके, ओके, थैंक्स. no worries. Any more question? जी काइंडली रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स भी अपना नेम शेयर कर दें, मुकम्मल नेम इनबॉक्स में या ग्रुप में, ताकि आपकी अटेंडेंस को नोट किया जा सके और वी विल प्रोवाइड ई सर्टिफिकेट. और फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें. किसी ने शायद माइक ऑन किया. अस्सलाम वालेकुम. मेरा ये क्वेश्चन है कि जो है ना, ये कोर्स कितने मार्क्स का होगा? जी सर, प्लीज आप गाइडलाइन दीजिएगा. जी मैं कोर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ. बेसिकली ये हमारा 6 बैच है और हमने वेबिनार भी कंडक्ट किया है उन लोगों के लिए जो कोर्स में इनरोल नहीं होना चाहते और अपने सीवी में कुछ सर्टिफिकेशंस ऐड करना चाहते हैं. तो ये कोर्स बेसिकली हमारा 6 वीक्स का है और 7 जुलाई से इंशाल्लाह ये कोर्स स्टार्ट होगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मंडे 7 जुलाई है होपफुली.
और ये आपका 50% ऑफ है कोर्स पे। कोर्स की जो टोटल फी है वो 9900 रुपीज़ है। 50% ऑफ के साथ डिस्काउंट के बाद आपकी ये फीस 4950 रुपीज़ बनती है और 250 रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। तो 5 days होपफुली इन अ वीक हम ये कोर्स कंडक्ट करते हैं। तो कोर्स की डिटेल्स इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएंगी और आप एकेडमी के नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 1 आवर की ही क्लास हुआ करेगी इसी तरह गूगल मीट पे डेली बेसिस पे, और ये मिस मुबीन शदादी टीच करेंगी उसमें। काइंडली आप ये बता दें कि टाइम क्या होगा, कितने बजे से लेके कितने बजे तक क्लास होगी? 1 घंटा। सेम टाइमिंग होगी 8 PM to 9 PM इसी टाइम। ओके थैंक्स सर। इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें अगर कोई फीस का कोई बाकी डिटेल नहीं हो या जिसमें बाकी डिटेल आएंगी, उसके लिए कोई बना हुआ है ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप? या जी व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं। वेबिनार का भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और कोर्स गाइडलाइंस के हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। मैं आप नंबर शेयर कर देता हूँ चैट इनबॉक्स में। जो लोग किसी और ग्रुप से ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अकेडमी का व्हाट्सएप सर नंबर थैंक शेयर कर दिया गया है चैट में। ओके सर थैंक जी एनी मोर क्वेश्चन? आई थिंक सो। अगर आप मेरी स्क्रीन शेयर आप देख सकते हैं तो ये कोर्स की कुछ डिटेल्स हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो लोग कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन बिल्कुल फ्री है। आप अपना नेम शेयर कीजिएगा, अपने अटेंडेंस का प्रूफ दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल as well as Miss Mubin and Miss Niab. स्टिल अगर किसी का क्वेश्चन हुआ वो लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिर अपने वेबिनार को एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह जो लोग कोर्स में एनरोल होंगे से फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।